بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا بھائی یوں تو عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، لیکن بھائی چھوٹے بھی ہوں تو بڑے ہی لگتے ہیں۔ میرے بھائی کا نام براق خان ہے۔ وہ ہمارے پورے علاقے کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا۔ ویسے تو ہم جیسے علاقے میں رہتے تھے، یہاں پر زیادہ تر مرد بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اور عورتیں بھی، لیکن اس کا ایک الگ ہی مقام تھا۔ سب لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پورے علاقے کا سب سے خوبصورت اور کڑیل جوان ہے۔ جب اس کی شادی کی بات آئی تو میری ماں کی ایک ہی شرط تھی کہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے۔ ہر خوبصورت لڑکی ہمیں مل نہیں رہی تھی، کیونکہ ہمیں بہتر سے بہترین کی تلاش تھی۔ کچھ لڑکیاں ہمیں بہت پیاری لگی، لیکن وہ باقی معاملوں میں اچھی نہ تھیں۔ بالآخر ایک لڑکی ایسی مل گئی جو خوبصورت بھی تھی اور کم عمر بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی، لیکن تھوڑی سی غیر سنجیدہ لگ رہی تھی، کیونکہ اپنے گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور لاڈلی بھی تھی۔ لیکن ہم ان لوگوں میں سے نہ تھے کہ بہو کو نوکرانی بنا کے رکھیں۔ اگر وہاں کی لاڈلی تھی تو ہم نے بھی اسے لاڈلی بنا کے رکھنا تھا، کیونکہ میرا بھی ایک ہی بھائی تھا اور وہ بھی چھوٹا۔ اس لڑکی کا نام گل بانو تھا۔ ہم لوگوں نے رشتہ طے کر دیا اور شادی بھی ہو گئی، لیکن شادی سے پہلے گل بانو کی ماں نے ہمیں ایک عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر کی چھوٹی بیٹی ہے، اس لیے بہت زیادہ لاڈلی ہے۔ میں آپ لوگوں سے کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتی، یہ تھوڑی سی عجیب سی ہے۔ ہم نے کہا کہ کیا مطلب؟ اور ہم تو اس بات پہ حیران ہوئے کہ ماں ہو کر اپنی بیٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کیسے کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ بس غیر سنجیدہ ہے، کھانا بنانا نہیں آتا اس کو، گھرداری بھی نہیں آتی، اور اس کی شادی کی عمر بھی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ شادی کروا رہے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شادی کر کے ہی اس کو عقل آئے گی۔ عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، اچھل کود کرتی ہے۔ اللہ معاف کرے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، لیکن اس نے سارے گھر کو تنگ کیا ہوا ہے۔ میری ماں اس بات پہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب شادی ہوتی ہے تو بڑے بڑوں کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ بات اپنے بیٹے کو بتا دیں تاکہ وہ شروع میں ذرا اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرے، ہاتھ ذرا ہلکا رکھے، بعد میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ میری ماں نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت ہی شائستہ اور نرم مزاج انسان ہے، آپ کی بیٹی کا بہت خیال رکھے گا۔ پھر بھی میں اس کو سمجھا دوں گی۔ ارے کوئی بات نہیں، بیٹیاں تو سب کی ایسی ہوتی ہیں۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ جس کو ہم لوگ ساری زندگی لاڈ کرنے کے لیے لا رہے تھے، ہم زیادہ دیر اس کے لاڈ نہیں کر پائیں گے۔ کیونکہ جب شادی کی رات کے بعد صبح ہوئی اور کمرے کا دروازہ کھلا تو پتہ چلا کہ گل بانو اس دنیا میں نہ تھی، اور وہ اس دنیا میں کیوں نہیں تھی یہ بھی ہمیں صاف نظر آ گیا اور پتہ چل گیا تھا۔ ہم لوگ حیران رہ گئے، آخر اس کے پاس یہ چیز آئی کہاں سے؟ اور جب میرے بھائی نے کہا کہ میں نے اسے یہ چیز منہ دکھائی میں دی تھی تو ہم سب حیران رہ گئے، کیونکہ اب اس کی ایک چیز کی وجہ سے میرا بھائی شاید قانون کے ہتھے چڑھنے والا تھا۔ جب ہم لوگ لڑکی کے گھر رشتہ دیکھنے گئے تو ان کے گھر کے باہر ایک بڑا سا صحن تھا۔ پہاڑی گھر ویسے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اس صحن میں ایک پیاری سی خوبصورت سی لڑکی گلے میں دوپٹہ ڈالے اسٹاپو کھیل رہی تھی۔ ہمیں لگا کہ یہ لڑکی کی چھوٹی بہن ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ ویسے یہ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، پتہ نہیں اس کی بہن کیسی ہوگی۔ اس نے کہا کہ ہاں دیکھتے ہیں۔ جب اندر گئے، بیٹھ گئے اور بات چیت ہونے لگی، اور اس کی ماں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی گل بانو کو بلاتی ہوں، تو وہی لڑکی کپڑے بدل کر اچھے سے دوپٹہ کر کے ہاتھ میں ٹرے پکڑے داخل ہوئی۔ تو ہم لوگ خوش ہو گئے کہ چلو یہ تو وہی لڑکی ہے، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ یہ کیسے لاؤ بالی سی لگ رہی تھی اور اسٹاپو کھیل رہی تھی، وہ بھی محلے کے بچوں کے ساتھ۔ ہم لوگوں کو لڑکی تو پہلے ہی پسند آ گئی تھی۔ میں نے اس کی چپکے سے تصویر کھینچ لی اور اپنے بھائی کو بھیج دی۔ میرا بھائی گھر بیٹھا تھا، اس نے بھی کہہ دیا کہ مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، اسی لیے میں نے اپنی ماں کو اشارہ کیا اور کہا کہ بات پکی کر دیتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی کو لڑکی کی تصویر دکھا کے کچھ غلط نہیں کیا، میں پہلے بھی ایسے ہی کرتی تھی، چپکے سے تصویر بنا لیتی تھی اور اپنے بھائی کو بھیج دیتی تھی۔ ظاہر ہے جو اس نے زندگی گزارنی ہے اس کی بھی تو مرضی ہونی چاہیے نا۔ اس کا کیا خیال ہے، کیا مرضی ہے، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس نے جب ہری جھنڈی دکھائی تو ہم لوگوں نے بھی بات پکی کر دی، لیکن جب واپس آ کر بتایا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی اور اس نے شربت پکڑاتے ہوئے امی کے اوپر بھی گرا دیا اور پھر بعد میں ہنسنے بھی لگی، تو میرا بھائی بھی ہنس دیا۔ اس نے کہا کہ اگر ایسی ہے تو اچھی بات ہے، گھر میں رونق لگے گی۔ ابھی تو ہمیں یہ سب کچھ ٹھیک ہی لگ رہا تھا، لیکن جب ہم اس کے گھر جاتے وہ کوئی نہ کوئی مزاحیہ حرکت کر ہی دیتی تھی۔ اب میری ماں تھوڑی سی پریشان ہونے لگی اور اس نے کہا کہ یہ لڑکی مجھے بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی،
ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे कोई दिमागी मसला है। जैसे ये देखने में तो जवान है, लेकिन इसकी उम्र दिमागी तौर पर कम है। मैंने कहा कि नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो शायद है ही ऐसी। मेरे भाई ने कहा कि मुझे ज़्यादा समझदार बीवी नहीं चाहिए, बस मुझे खूबसूरत बीवी चाहिए। समझदारी तो वक्त के साथ आ जाती है। पहले से ही समझदार बीवी लेकर आओ तो फिर वो शादी के कुछ साल बाद समझदार नहीं बनती, बल्कि उसकी सारी सोच समझ सब कुछ मर जाता है। वो एक जिंदा लाश बन जाती है। हमने कहा कि ये तो कैसी बातें कर रहा है, हमने कौन सा तुम्हारी बीवी पे जुल्म करने हैं। तो वो कहने लगा कि बाजी, जुल्म की बात नहीं, अचानक से ज़िंदगी बदल जाती है। औरत पराए घर में आ जाती है, एक पराए मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारती है। इसकी ज़हनी मुताकबत के साथ एग्जिस्ट करते करते इसके सामने बहुत से इस तरह के माहौल और वाक़यात आते हैं कि जिसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं होता। और फिर 1 साल में ही बच्चा हो जाए तो वैसे ही अकल ठिकाने आ जाती है। ऐसे में औरत की शादी के शुरू के 3-4 साल बड़े मुश्किल होते हैं, और इसमें इसकी या तो शख्सियत बदल जाती है और या फिर वो हार मान जाती है। मैंने अपने भाई को 2 पल देखा और हैरान होकर पूछा कि तुम्हें इसके बारे में इतनी बारीक बीनी से कैसे पता है। तो कहने लगा कि वो मैंने औरत की नफ्सियात पर एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर ये सब कुछ लिखा था। मेरी माँ ने कहा कि चलो अच्छा है, तुमने किताब पहले ही पढ़ ली, शायद तुम उसको संभाल ही लोगे। मैंने कहा कि वो किताब अपने बहनोई को भी दे दो ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो जाए। हम इस बात पर हंसने लगे। बात शादी तक पहुंच गई और शादी हो गई। वो दुल्हन बनी बैठी थी और हंस रही थी। मैं इसके पास गई और मैंने इसे कहा कि गुलबानो, हंसो नहीं, हम लोग इस बात को अच्छा नहीं समझते हैं। वो कहने लगे कि बाजी, अगर मैं हंसूंगी नहीं तो मेरी तस्वीरें बुरी आएंगी। मैंने कहा कि जब तस्वीरें बनानी होंगी तो तब मैं तुम्हें बता दूंगी, अभी तो सर झुका के संजीदा होके बैठ जाओ। ऐसे बहुत से मामलात थे जिसमें मुझे इसे बाकायदा तौर पर संभालना पड़ा, समझाना पड़ा, नहीं तो वो हम सबको शर्मिंदा करवाती। खाना खाते हुए भी ऐसे मुंह खोल के खाना खा रही थी। मैं अपने भाई की तरफ देख रही थी, वो तो खुश हो रहा था। शायद वो बहुत ही ज़्यादा हुस्नपरस्त आदमी था। जब शादी की रात वो अपने कमरे में जाने लगा तो मेरी माँ ने और मैंने उसे वो बात बताई जो हमें गुलबानो की अम्मी ने बताई थी और कहा था कि इसका ज़रा ख्याल रखना। तो हमने उसे सब कुछ समझा दिया और कहा कि देखो, अच्छे तरीके से पेश आना। लड़की तो मैं तुम्हारी पसंद की ले दी है, लेकिन थोड़ी सी मासूम है और लाडली किस्म की है, इसलिए किसी बात का बुरा ना मना लेना। कहीं तुम्हारे दोस्तों ने मशवरे तो नहीं दिए कि जाकर बीवी को रोब में ले लेना। देखो, ये रोब में आने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। तुम उसे रोब दिखाने की कोशिश करोगे, वो कुछ और ही समझ लेगी। मेरे भाई ने कहा कि मुझे अगर किसी ने मशवरे दिए भी हों तो मैं ऐसे घटिया मशवरों के कभी भी अमल नहीं करूँगा। मेरी बीवी है और शुरू के दिनों में मुझे इससे रुख जमाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसका दिल जीतने की ज़रूरत है। जब मेरा भाई ऐसी ऐसी बातें करता था तो मेरा दिल करता था कि मैं इसकी बलाएं लूँ। मेरी माँ ने इसकी बहुत अच्छी तरबियत की थी। उसने हम लोगों को यकीन दिलाया कि आप लोग परेशान नहीं हो, हम अपनी तरफ से अभी तक बिल्कुल ठीक और मुतमईन थे। हम लोगों ने अपनी भाभी का बहुत ख्याल किया था, अभी तक इसका बहुत ख्याल कर रहे थे, आगे भी करना था। लेकिन मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब दुआ करो कि तुम्हारी भाभी को अक्ल आ जाए। सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। जो लड़कियां समझदार थीं वो खूबसूरत न थीं, क्योंकि समझदारी उम्र के साथ आती है। तुम्हारे भाई को कम उम्र और खूबसूरत लड़की चाहिए। अब देखो क्या होता है। वो कमरे में चला गया और अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि वो किचन में खड़ा हुआ था। हम लोग इसको देख के हैरान रह गए। हमने कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कमरे से बाहर क्यों आए हो गुलबानो को अकेला छोड़ के? तुम्हारे कमरे में पानी, दूध, बिस्किट सब कुछ तो रखा था हमने। तो कहने लगा कि हाँ, वो गुलबानो कह रही थी कि मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, उसके लिए खाना निकाल रहा था। मुझे लगा कि आप और अम्मी सो गए होंगे, क्योंकि शादी में बहुत थक गए थे, इसलिए आप लोगों को नहीं कहा। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि अम्मी तो वाकई सो गई हैं, लेकिन मैं भी जाग रही हूँ, हटो मैं गर्म कर देती हूँ। जब मैं सालन गर्म कर रही थी तो मेरे भाई ने कहा कि बाजी, वो एक बात है। मैंने कहा कि जनाब बोलो, क्या बात है? कहने लगा कि वो कह रही थी कि लेग पीस की बोटी ज़रूर लेकर आना। मेरे भाई ने ये बात की। मैंने उसे हैरान होकर देखा और हम दोनों ही हंसने लगे। मैंने कहा कि बड़ा बुरा फंस गया है तू, तेरी बीवी कम और बेटी ज़्यादा बन जाएगी, बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। वो कहने लगा कि अभी तो मेरी शादी हुई है,
आप अभी से इसको मेरी बेटी ना बनाएं, कहीं निकाह ही ना टूट जाए। हम दोनों ही हंस रहे थे। मैंने सालन गरम किया, नान गरम किए, बिरयानी भी गरम की, साथ रायता और देगर लवाजमात रखे और ट्रे सजा के अपने भाई को दे दी और कहा कि ये लो, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी रात के वक्त भूख लग गई थी, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि जाकर सो जाओ। मैंने कहा कि मैं क्यों कहूँ कि मैं बड़ा कोई अच्छा शौहर हूँ। कसम से बाजी, मैंने भी इसको यही कहा कि तुम सो जाओ, सुबह खा लेना। वैसे भी सुबह होने में ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन इसने तो ज़िद करना शुरू कर दिया और रोना भी शुरू कर दिया। कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, भूख से मेरे मैदे में दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि फिर तो तुमने ठीक ही किया। खैर, मैंने फिर से भाई को इसके कमरे में भेज दिया और मैं अपने कमरे में आ गई। अभी मैं कमरे में बैठी थी और मैंने सुबह से अब अपना फ़ोन पकड़ा था। मेरे फ़ोन पे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। मेरा शौहर बाहर के मुल्क होता था, इसलिए मैं उसे घर में रहती थी। इसके भी मैसेजेस थे, मुबारकबाद दे रहा था। कुछ और लोगों के भी थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो पैसे मांग रहे थे। लेकिन एक ऐसे नंबर से मैसेज आया जो नंबर मेरे फ़ोन में सेव ना था और डीपी के ऊपर तो किसी औरत की तस्वीर बनी हुई थी। पता नहीं अब ये कौन थी। इसने 5 मिनट का वॉइस मैसेज भेजा हुआ था। पहले मैंने मैसेज किया कि आप कौन, और उसके बाद वॉइस मैसेज सुना। और जब मैंने वॉइस मैसेज सुना तो मैं हैरान रह गई। जैसे जैसे मैं इसकी बात सुनती जा रही थी वैसे वैसे मैं हैरान हो रही थी। इसका मतलब कि हमारे घर पे बहुत बड़ी मुसीबत नाचने लगी थी। जो कुछ बुरा होना था वो हो चुका था। अब मैं अपने भाई के कमरे में कैसे जाती? वैसे बात तो ऐसी थी कि मैं सीधी ही उसके कमरे में चली जाती और उसको बता देती कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लेकिन मेरे तो हाथ पांव फूल गए और मैं जा नहीं पाई। सोचा कि सुबह बता दूंगी और अल्लाह से दुआ करने लगी कि ऐसा वैसा कोई मामला ना हुआ हो। लेकिन मैंने जो ये बात सुनी थी, मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अगर मेरी माँ को पता चलता तो शायद मेरी माँ की तबीयत ही ख़राब हो जाती। और मेरा भाई जो बेचारा इतना खुश था, उसकी खुशियों को तो नज़र लग गई। सच कहते हैं, खुशियों को नज़र लग जाती है। मेरे भाई के साथ जो हुआ था वो इस बात की जिंदा मिसाल थी। और मैं इस लड़की के बारे में सोच रही थी कि वो देखने में तो ऐसी नहीं लगती थी। मुझे मैसेज करने वाली औरत ने अपना तारुफ भी बताया हुआ था, अपना नाम भी, और ये भी बताया कि वो कहाँ रहती है। उसने कुछ भी छुपाया न था। उसने कहा कि काश कि मैं आप लोगों को ये सब कुछ पहले बताती तो आपका भाई बच जाता, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। अभी भी वक्त अपने भाई को बचा ले। सुबह होने में 2-3 घंटे ही थे। सुबह हुई तो मैं दरवाजे पर दस्तक दे के वहाँ से हट गई। मेरा भाई दरवाज़ा खोल के बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो बाथरूम में था। नहा धो के बाहर निकला तो मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा कि क्या हो गया है बाजी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? मैंने उसे कहा कि देखो, ये बात अम्मी को नहीं बतानी, बस तुम्हें बतानी है। मैं इससे बात तो करने लगी, लेकिन अभी घर में कुछ मेहमान थे और कुछ मेहमान जो आसपास रहते थे रात को अपने घर चले गए। वह सुबह सुबह फिर से आ गए थे, क्योंकि आज वलीमे की भी रस्म थी और सुबह को नाश्ता भी हमारी तरफ से ही था। हमारे तकरीबन सारे रिश्तेदार ही आसपास रहते थे सिवाय मेरे शौहर के, इसलिए वो रात को सोने के लिए अपने घर चले गए। उन्होंने कहा कि शादी वाले घर में सोकर क्या करना है, अपने घर में जाकर सुकून से सो जाएंगे और सुबह फिर से आ जाएंगे। वो लोग आ गए और मेरा भाई भी उनकी खातिर तवाज़ो में लग गया। उसने मेरी बात को गौर से सुना नहीं। वो सोचने लगा होगा कि ऐसी भी कौन सी बात है। फिर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं उसे अपने कमरे में ले आई और मैंने उसे वो वॉइस मैसेज सुनाया तो मेरा भाई भी हैरान रह गया। हमने ये बात अपनी माँ को तो ना बताई थी। हम दोनों ही कमरे की तरफ भागे। मेरे भाई ने कहा कि अभी बात करते हैं, लेकिन सामने का मंजर देख के हैरान हो गए, क्योंकि गुलबानो इस दुनिया में ना थी और उसके पास एक हथियार पड़ा हुआ था जो उसकी मौत की वजह बना था। मैंने कहा कि ये यहाँ पर कैसे आया? मैं घबरा गई। हमें लगा शायद लगता है वो जिंदा थी, लेकिन इसको देख के पता चल रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं थी। उसने कहा कि ये तो मैंने मुँह दिखाई में दिया था। मैंने कहा कि तुमने मुँह दिखाई में इसको ये हथियार दिया था? वो कहने लगा कि आपको पता नहीं है, हमारे इलाके की रस्म का लड़की को मुँह दिखाई में हथियार दिया जाता है और उसे ये बताया जाता है कि आज से इसकी हिफाजत करने वाला उसकी ज़िंदगी में आ गया है, और अगर वो इसकी ज़िंदगी में ना रहे तो वो इसका इस्तेमाल करके अपनी हिफाजत करे। हम तो पठान लोग हैं ना, बहादुर कौम है, इसीलिए इसी तरह की चीज़ तोहफे में दी जाती है। मैंने कहा कि हाँ देते हैं तोहफे में, पर उन लोगों को
जो समझदार होते हैं। तुमने अपनी इस बेवकूफ़ और पागल बीवी को ये हथियार दे दिया और उसने न जाने क्या हरकत की कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। साफ पता चल रहा था कि शायद वह इसको चलाने की कोशिश कर रही थी और गलती से इसके साथ हादसा हो गया। लेकिन ये बात कौन मानता? पुलिस वाले तो यही कहते क्योंकि ये सब कुछ हमारे घर में हुआ है। हमारे यहाँ रस्म थी कि जब लड़की की शादी होती तो उसके कमरे में घर में जितने भी हिफाजत के हथियार होते वो सारे रख दिए जाते, इसको ये बताने के लिए कि अब इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गुलबानो की माँ ने जब हमें इसके बारे में बताया तो हमने ये रस्म करने के बारे में न सोचा कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, पर मेरे भाई ने भी उसको वही चीज़ गिफ्ट में दे दी अपनी तरफ से इस रस्म को निभाने के लिए, और आज इस रस्म की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया था। उस वॉइस मैसेज में ये था कि गुलबानो अपने होशो हवास में न थी। उसकी उम्र 17 साल नहीं थी जो कि इसके घर वालों ने बताई थी, बल्कि उसकी उम्र 26 साल थी। वो दुबली पतली थी इसलिए पता नहीं चलता था। खूबसूरत थी, जवान थी, लेकिन दिमाग इसका 12 साल की लड़की वाला था। तभी तो वो इस तरह की हरकतें कर रही थी। इसके घर वालों ने ये बात छुपाई थी और जब वो 19 साल की थी तो उसकी शादी की थी, और उसने उन घर वालों को इतना तंग किया कि इतना जलील किया, अपनी सास को ही मजाक मजाक में सीढ़ियों से धक्का दे दिया। और उसकी सास ने ही मुझे वॉइस मैसेज किया था। उसने कहा कि इस हादसे के बाद मैं आज तक चल नहीं पाई, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई, सिर्फ उस लड़की के पागलपन की वजह से। हम भी शक्ल सूरत देख के ले गए थे, हमें क्या पता था कि पागल निकलेगी। हमें इसकी माँ ने यही कहा था कि थोड़ी सी खैर संजीदा है, मासूम है बेचारी, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसे एक नफसियाती मर्ज़ है जिसमें इसकी बीमारी इस हिसाब से है कि इसकी दिमागी उम्र इसकी अपनी उम्र से आधी से भी कम है, और उस वक्त तो और भी कम थी। हमें तो फ़ौरन ही पता चल गया, लेकिन जब हमने इसका घर वालों से बात की तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हसीब का साया है, इसलिए ये कभी कभी इस तरह की हरकतें करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर का माहौल ख़राब होने लगा। कभी कोई चीज़ तोड़ देती तो कभी कोई। एक दिन तो इसने गैस आन छोड़ दी और सुबह सुबह धमाका हो गया, लेकिन ये शुक्र है कि किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और फिर जब इसने मुझे धक्का दिया तो इसे ये सब कुछ करते हुए इसके अपने शौहर यानी मेरे बेटे ने देख लिया, और उसके बाद उसने इसे अपनी ज़िंदगी से निकाला और माँ बाप के पास वापस छोड़ दिया। हम लोग आपके इलाके में नहीं रहते, हम लोग दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन हमें पता चला कि इसकी शादी किससे कर रहे हैं, इसीलिए किसी तरह आपका राब्ता नंबर लेके मैं आपको ये वॉइस मैसेज कर रही हूँ। इसका मतलब कि वो अपने होशो हवास में न थी। उसकी माँ ने हमसे झूठ बोला, वरना हम भी ये सोच के हैरान हो रहे थे कि अगर लड़की में कोई कमी होती तो इसकी माँ कभी भी शादी से पहले वो कमी उसकी सास और नंद को नहीं बताएगी। कौन सी माँ ऐसे करती है? अगर लड़की को खाना बनाना नहीं आता तो माँ झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं इसको खाना बनाना आता है, और यहाँ पर वो खुद कह रही थी कि थोड़ी सी गैर संजीदा है, मासूम है, लाडली है, ताकि वो बाद में ये कह सकती कि हमारी बेटी तो मासूम और लाडली सी थी। असल में उनकी बेटी नफसियाती मरीज़ा थी और पागल थी। इसका दिमाग बच्चों वाला था और मेरे भाई ने इसके पास हथियार रख दिया। एक बच्चे के पास हथियार रखते हैं तो वो इसके साथ क्या करेगा? जाहिर है इसके साथ छेड़छाड़ करेगा, और उसी का पता भी नहीं होगा कि इसका रुख किस तरफ करना है। और उसके बाद शायद वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन अब ये इतनी बड़ी कहानी पुलिस वालों को और उसके घर वालों को कौन समझाता? जब इनको ये बात पता चली तो जाहिर है उनके लिए दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने सारा इल्ज़ाम हम पे ही डाल दिया। मेरे भाई को पुलिस पकड़ के ले गई और ये साबित करने में हमें बहुत वक्त लग गया कि दरअसल वो पागल थी और उसने ये सब कुछ एक हादसे के तौर पे किया था, क्योंकि सब यही कह रहे थे कि कमरे में सिर्फ दुल्हा गया था और ये हथियार भी दुल्हे का था। उसने खुद ही अपनी बीवी की जान ली है और शादी की रात इसको इस दुनिया से रवाना किया। अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। करते कराते बात यहाँ तक पहुँच गई कि मेरे भाई को 1.5 साल जेल में गुजारना पड़ा। इसके बाद हमने अपना सब कुछ बेच के एक बहुत बड़े वकील को हायर किया और उसने किसी तरह ये बात निकलवाई और उस औरत को भी बुलाया गया जिसने हमें वॉइस मैसेज किया था। फिर उसकी गवाही, उसके बेटे की गवाही, और उसके पास गुलबानो की एक पुरानी वीडियो भी थी जिसमें साफ नज़र आ रहा था कि वो पागल थी। वो इसे डॉक्टर के पास भी ले गए थे और डॉक्टर ने भी ये बात हतमी तौर पे कह दी थी कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। इनके पास रिपोर्ट्स भी थी। हमारा केस अभी भी कच्चा था, लेकिन करते कराते हम लोग किसी तरह कामयाब हो ही गए,
کیونکہ ان لوگوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ میرے بھائی کی زندگی کا 1 1.5 سال ضائع ہوا، ہماری بدنامی ہوئی، لوگوں نے ہم پر باتیں کی۔ لوگ تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ مری نہیں، اس لڑکی کی جان لی گئی ہے، وہ تو بیچاری بہت معصوم تھی اور اس کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ بالآخر میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور اپنے بھائی کو باہر کے ملک بھیج دیا، کیونکہ میرا شوہر اب واپس آ رہا تھا، اس کا کام ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی جگہ پہ میرے بھائی کو بھیج دیا، وہ وہیں پہ رہتا ہے اور ہم اسے کہتے ہیں کہ وہیں پہ کسی سے شادی کر لے۔ اس حادثے نے میری ماں پہ بھی بہت برا اثر چھوڑا، وہ بھی بہت بیمار ہو گئی، لیکن ابھی پہلے سے بہتر ہے۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس طرح سے ماں باپ کا جھوٹ بولنا اور اپنی پاگل بیٹی کی شادی کر دینا مناسب ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اس معاشرے میں پاگل بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، یہ کہہ کے کہ شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ تو لڑکی ہی پاگل نکلی۔ اگر شوہر کماتا ہو، پاگل ہو یا منموجی ٹائپ کا ہو، پھر بھی اسے سنبھال دیتی ہے، لیکن اس طرح کے کیس کو سنبھالنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ وہ خود ہی اپنی جان لے بیٹھی۔ ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ کہیں اس نے غلطی سے ہمارے بھائی کی جان نہیں لے لی، ورنہ پھر کیا کرتے۔ ابھی بھی ہمارے علاقے میں یہ کہانی اسی طرح سے مشہور ہے۔ میں لوگوں کے دماغ سے اس کہانی کو نہیں نکال سکتی، لیکن مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ کچھ ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ سچی کہانیاں بھیجی جاتی ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہانی یہاں بھیج کر یہ ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں اس طرح بھی ہوتا ہے۔ میرا بھائی بے قصور تھا، وہ بہت جوان اور خوبصورت تھا۔ شاید اسے لوگوں کی نظر لگ گئی کہ اس کی زندگی میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ ابھی وہ باہر کے ملک ہی ہے، اچھے پیسے کماتا ہے، لیکن شادی کی بات کرے تو کہتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ تو وہیں پہ کسی سے شادی کر لے کیونکہ تیری ابھی پوری زندگی پڑی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میرا دل نہیں مانتا، جو میرا دل کرے گا میں وہیں کسی سے شادی کر لوں گا یا واپس آ جاؤں گا۔ بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں کسی کو بھی قصوروار ٹھہرانے سے پہلے پورے معاملے کی جڑ تک جانا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی چور ہوتا ہے۔ ہمیں تو اس وقت ہی سمجھ آنا چاہیے تھا جب اس کی ماں نے ہمیں پہلے سے بلا کے کہا تھا کہ میری بیٹی تھوڑی سی غیر سنجیدہ سی ہے، ورنہ کوئی بھی ماں اس طرح نہیں کہتی، وہ بھی شادی سے کچھ دن پہلے۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا، ہمیں لگا کہ جیسے ہم صاف کو لوگ ہیں ویسے اس کی ماں بھی صاف کوئی سے کام لے رہی ہے، مگر وہ صاف کوئی سے نہیں، چناک سی سے کام لے رہی تھی، اور یہ بات سمجھنے میں ہم نے دیر کر دی اور ہمارے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔